Today I'm going to discuss IELTS writing task 2. This is the direct statement. So watch this video till the end if you want to know how to write IELTS writing task 2 with the best way. First of all, look at the statement. Email is a fast and convenient way to communicate and written letters are not needed anymore. मतलब किया अपन स्टेटमेंट च उन्होंने कहा जो ईमेल्स आ ईमेल करना किसी ने फास्ट तो कन्वीनियंट तरीका वा कम्यूनीकेट करने का मीनस गलबात करने का एंड जो रिटन लैटर्स आ इन्हों की जरूरत नहीं गी ये अपन कोई टाइप नहीं दसी भी तुम डिस्कस बोथ व्यूज़ करना या डू यू एग्री और डिसएग्री और यू टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री जो अपन इस तरह की स्टेटमेंट दी हो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਊ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਫੁੱਲੀ ਅਪ ਟੂ ਔਨ ਯੂਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਚ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ in your IELTS writing task 2 according to the statement which is given here ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ please watch this video till the end. Now I'm going to start. First of all, the introduction ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਥ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਮਿਲਰ ਰਵੇ ਫਿਰ ਥੀਸਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਦਓਗੇ ਥੀਸਿਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆ Now I'm going to start the introduction. It is a irrefutable fact in this current scenario, technology is progressing significantly. By dint of this, email is considered instant as well as comfortable source in order to send messages to others rather than written letters. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਰਫਿਊਟੇਬਲ ਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਰਫਿਊਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਟਰੂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਇਨ ਦਿਸ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਈਮੇਲ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਈਮੇਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੋਰਸ in order to send messages ਨੂੰ send ਕਰਨ ਲਈ to others ਨੂੰ rather than written letters ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ यूज़ ਕੀਤਾ semicolon after that ਲਗਾਇਆ however ਫਿਰ comma this essay will delineate ਮਤਲਬ show ਕਰੂਗਾ amalgamation ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ mixture this essay will delineate amalgamation of both aspects in upcoming fragments prior to logical conclusion ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਊਐਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਡੈਲੀਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋ ਅਮੈਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਚਰ ਦੋਵੇਂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਮਤਲਬ ਵਿਊਜ਼ ਇਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਅ BP1 Firstly, मैं sentence use किया हुआ interrogative sentence. Why email is more preferable instead of written letters? भी जो email क्यों ज़्यादा preferable है written letters ही बजाय instead of written letters. फिर अपना point mention करने लिए मैं connector use किया. First enable etiology का मतलब first and foremost. This tendency attributes to conserve valuable time of individuals. सब तो पहला फायदा किया email का ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵ ਮਤਲਬ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਫ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ ਜੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ देयर मैसेज कैन बी कन्वेड टू अदर्स विद इन अ फ्यू सैकेंड तो उन्होंने जोड़े मैसेज आ दूजे नूं कन्वे किए जा सकते हैं विद इन अ फ्यू सैकेंड्स दे इत्थे आपां पैसिव फॉर्म यूज़ की है इस मॉडल की कैन दी फिर आप एग्जाम्पल देती
दिस इज़ अ फैक्ट फॉर इंस्टेंस इस मैं हाइड कनैक्टर यूज़ किया फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग तो यूज़ करते हैं हाइड किमें करना होंगे वा जिवें आप कहना कि ये फैक्ट वा फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग तो यूज़ करने की बजाय आप कॉमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल लगा सकते हैं इन दिस मॉडर्न पीरियड ड्यू टू एडवेंट ऑफ टैक्नोलॉजी टैक्नोलॉजी की एंट्री होने करके एडवेंट का मतलब होंदा एंट्री सैंडिंग ईमेल्स हैज़ प्रीवेल जो सैंडिंग करना ईमेल्स नू ये प्रीवेल हो चुकिया प्रीवेल का मतलब प्रचलित हो चुकिया वा ऑलमोस्ट इन एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड सारे रीजन के सारे रीजन मतलब एरिया वर्ल्ड के रिजल्ट की इस चीज़ का रिजल्टेंटली ऑबटेनिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स हैज़ बिकम कन्वीनियंट मीन फॉर सेविंग टाइम तो ऑबटेन करना ऑबटेन मतलब गैट करना इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट साधन मीन मतलब सोर्स बन चुकिया फॉर सेविंग टाइम फर्स्टली आप ये किया ईमेल का की बैनीफिट्स आ वो दसते भी सब तो पहले लोगों का टाइम सेव करता किमें करता वा जो लोग इन्हू प्रैफर करते अपने मैसेज में विद इन अ फ्यू सैकेंड सेंड कर सकते अदर्स नू इफ फिर आप एग्जाम्पल देने हाइड कनैक्टर यूज़ किया फॉर इंस्टेंस भी मॉडर्न जो पीरियड अजकल ड्यू टू एडवेंट ऑफ टैक्नोलॉजी ईमेल नू भेजना बहुत ज़्यादा प्रीवेल हो चुकिया वा हर रीजन के वर्ल्ड की रिजल्ट की है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत ही कन्वीनियंट वे बन चुकिया फॉर सेविंग टाइम हुण नैक्सट आप रिटन लैटर्स के की बैनीफिट्स आ ये कितने यूज़ होंगे इन्होंने बारे दसांगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतने की यूज़ करते हैं ऑन द अदर हैंड ये जगह आप यूज़ किया कनैक्टर ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड जिसका मीनिंग सिमिलर ही आ फिर आप यूज़ किया कनैक्टर डिस्पाइट ऑफ हैविंग एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिट ईमेल्स नू ट्रांसमिट का मतलब होंदा वा सेंड करन दी बावजूद भी ये टू अदर पीपल देयर आर सर्टेन ये कुछ डिमैरिट्स भी है डिमैरिट्स मतलब ड्रॉबैक्स भी है ईमेल्स नू सेंड करन दे विच कैन नॉट बी नैगलैक्टेड जिन्होंने इग्नोर नहीं किया जा सकता आप कहता भी जोड़े ईमेल्स नू सेंड करन दे फायदे के नाल कुछ नुकसान भी है जिन्होंने जोड़ा वा निगलैक्ट मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता बाय वर्चू ऑफ दिस का मतलब ड्यू टू रिटन लैटर्स आर गिवन प्रीडेंस रिटन लैटर्स नू प्रीडेंस दी जाती है स्पैशली इन केस ऑफ ऑफिशियल वर्क्स ऑफिशियल कामों के प्रीडेंस का मतलब होंदा प्रैफरेंस जिवें आप कहने रिटन लैटर्स आर गिवन प्रैफरेंस इत्थे भी पैसिव यूज़ किया मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ਉਹਦੀ जगह प्रैफरेंस या प्रीडेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्पैशली कितने यूज़ किया इन केस ऑफ ऑफिशियल वर्क्स बिकॉज विद द एंडोर्स ऑफ दिस वोग एंडोर्स का मतलब होंदा हैल्प भी इस ट्रेंड की मदद के नाल वोग मतलब ट्रेंड की हैल्प के नाल वाइटल लैटर्स मे बी ट्रांसफर्ड वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट लैटर्स आ जोड़े कि भेजे जा सकते हैं विदाउट बीइंग फेल्ट अफ्रेड ऑफ लॉसिंग प्रीडोमिनेंट डिस्क्रिप्शन बिना ये महसूस किए भी सारी जी इन्फॉर्मेशन आ प्रीडोमिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ वो लॉस हो गई ये बिना सोचे ये जोड़े रिटन लैटर्स आ ये ऑफिशियल जोड़े वर्क्स के वरते जाते हैं मोस्ट ऑफ द जोड़े ऑफिशियल काम आ वो रिटन लैटर्स से बेस्ड आप कहता फिर आप एग्जाम्पल देने नैक्सट जो कनैक्टर यूज़ किया टू साइट एन एग्जाम्पल लास्ट में आप हाइड कनैक्टर यूज़ किया फॉर इंस्टेंस इतने आप डायरैक्ट यूज़ कर लिया टू साइट एन एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द नेशनस गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स आ बहुत सारिया नेशनस गिव प्रायोरिटी ये प्रायोरिटी देंदियां टू पेपर बेस्ड लैटर रिटन लैटर्स नूं आपां कहता पेपर बेस्ड लैटर्स एज कंपेयर टू टेक्निकल वंस ईमेल लैटर नूं आपां लिखता ईमेल्स नूं सॉरी लिखता टेक्निकल वंस एज अ सीक्वल किया इहदा रिजल्ट किया रिजल्टेंटली लास्ट बीपी च आपां यूज़ किया ये यूज़ किया एज अ सीक्वल जिहदा मीनिंग द एज अ रिजल्ट द मोर दिस फिनोमिना इज अडॉप्टेड जिन्ना ज़्यादा फिनोमिना अडॉप्ट किया जाता वा द बैटर फॉर प्रिजर्विंग पाइवोटल इन्फॉर्मेशन उन्ना ही बैटर आ बचाने पाइवोटल मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये इस बीपी च अपन 3 to 4 आ जेडे और इंपॉर्टेंट सिनोनिम पता लगे फर्स्टली पाइवोटल प्रीडोमिनेंट वाइटल इंपॉर्टेंट चलो अपन पता ही आ रिजल्ट के लिए मैं यूज़ इत्थे किया डबल कंपैरेटिव सेंटेंस the more this phenomena is adopted the better for preserving pivotal information लास्ट अपना कनक्लूजन आ कनक्लूजन की जो भी आप लिखा वा अपने राइटिंग टास्क 2 के करक्स लिखना होंगे वा इन कनक्लूजन इवन दो देयर आर सम लॉसिज ऑफ रिटन लैटर्स आप कहते भावें कुछ नुकसान है रिटन लैटर्स इन कंपैरिजन विद ईमेल्स रिवार्ड्स आर आउट नंबर रिवार्ड मतलब जो फायदे आ आउट नंबर ये आप आपके ओपीनियन की लिखता भी जो रिटन लैटर्स के फायदे वो ज़्यादा आ एज कंपेयर टू लॉसिज होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर writing task 2. If you have any kind of difficulty you can ask me through comments. Thanks for watching my video. Please subscribe and share my channel with your friends
and family. Thanks.